So, hello everybody, welcome to the second lecture of the series of the history of English literature. And we're going to begin from where we left. We had done the history of Anglo-Saxon age and we were doing the literature of the Anglo-Saxon age, and we had done one text, that's Widsith, and we had read that Widsith was the first Anglo-Saxon text, and it was written in the Exeter book in the 10th century in the West Saxon dialect, and originally it's believed that it was written down in Northumbria, right? If you have not watched our lecture 1, please go first watch lecture 1, because that will help you to link with lecture 2 and help you understand the history of Anglo-Saxon people better, right? So let's begin now with the lecture 2, and we had to begin with a very important text, that's Beowulf, right? तो Beowulf जो है वो एक बहुत important text है in the Anglo-Saxon age, right? Because ये एक epic है और ये एक only epic है basically German language की, ठीक है? So let's begin by reading about this book in detail, right? So Beowulf has a very special position in the Anglo-Saxon literature or in the old Germanic literature as a whole, right? It is the only complete epic of its kind in the German language. In its background, it reveals the culture and society of the heroic age of Germanic people. Okay, so basically ये एक epic है अपने kind की, and it's majorly the only epic in the Anglo-Saxon age, and it is majorly telling you about the Germanic people, right? Their culture and different aspects of their life, right? Then it survived in a single manuscript, right? This is very important. What? कि ये एक सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट में सर्वाइव हुई थी, राइट? इट सर्वाइव्ड इन अ सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, क्या हुआ था? दिस टेक्स्ट सर्वाइव्ड इन अ सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, सो it survived in a single manuscript, but it is said that it was damaged by fire. And what is the name of that single manuscript? It's Novel Codex. You have to remember that, okay? And then another point is that originally basically इसका कोई title नहीं था. It wasn't given a title Beowulf, right? बाद में इसके hero पे इसका title दे दिया गया था because the hero of this entire text is Beowulf, so we gave it a title Beowulf, right? But originally इसका कोई title नहीं था, right? और ये एक single manuscript में find की गई थी जिसका नाम क्या था? Novel Codex, ठीक है? But it is said that it was damaged by fire. It consists of 3,182 alliterative lines. Okay. Now it has heroic idealism and somber fatalism, right, which reflects the Germanic temper, right? ये तुम्हें पता लगेगा जब हम उसकी plot की तरफ जाएंगे, right? It is believed to be a folklore written by single author, right? और ऐसा माना जाता है कि एक single author ने लिखी है in the first half of the 8th century, ठीक है? और कब लिखी गई है? It is written around the first half of the 8th century and produced between 975 and 1025. और इसको produce कब किया गया था? 975 और 1025 के बीच में 8th century में लिखी गई है, but it was produced between 975 and 1025. Okay. It is mainly divided into two parts and it begins in media res. Why? Because ये एक epic है और एपिक की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यही होती है कि वो मीडिया राज से शुरू होती है. इट बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ थिंग्स, राइट? सो डज Beowulf. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू पार्ट्स. ओके, तो पहले पार्ट में क्या होता है कि जो Beowulf है वो जाता है कहाँ? गीट्स, राइट? वो गीट्स जाता, जो Beowulf होता है वो जाता है डेनमार्क, राइट? और हमारा जो Beowulf है वो नेफ्यू है King Hygelac of Geats का, right? Beowulf is the nephew of King Hygelac of Geats का, और वो जाता है King Hrothgar of Denmark के कोर्ट में, ठीक है? तो वो कहाँ जाता है? Beowulf अब पहले सीन में Beowulf डेनमार्क जा रहा है, कहाँ पर? King Hrothgar से मिलने, ठीक है? क्यों जा रहा है? क्योंकि King Hrothgar जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका छुटकारा उसे दिलवाने के लिए Beowulf जा रहा है हमारा, ठीक है? तो द एजिंग हॉथगर, क्यों? क्योंकि हॉथगर जो है वो बूढ़ा हो चुका है. द एजिंग हॉथगर हैज लॉन्ग बीन प्लेग्ड बाय अ मैन ईटिंग मॉन्स्टर नेम ग्रेंडल, है ना? क्योंकि हॉथगर जो है वो बूढ़ा हो चुका है और उसका जो किंगडम है उस पे ग्रेंडल ने तबाही मचा रखी है. एंड हु इज ग्रेंडल? ग्रेंडल है एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर है जो आदमियों को खाता है,
राइट, और उसने उसके किंगडम में तबाही मचा रखी है, राइट। हु कम्स रेगुलरली टू द किंगडम्स ग्रेट हॉल ऑफ हेरोट, राइट, और वो उसके ग्रेट हॉल में आता है, द ग्रेट हॉल ऑफ हेरोट में वो आता है रोज 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 रोज, और उसके वॉरियर्स को प्रे डाउन कर देता है, राइट। ही कम्स टू द ग्रेट हॉल ऑफ हेरोट एंड ही प्रेज डाउन his warriors, right, whose warriors, रॉथगर के वॉरियर्स को वो प्रे डाउन कर देता है, एंड बेओवुल्फ कम टू डेनमार्क टू स्ले द मॉन्स्टर, और बेओवुल्फ आता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, ठीक है। अब मॉन्स्टर, बेओवुल्फ उस मॉन्स्टर से लड़ता है ना, और उसे हरा भी देता है, पर फिर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, और उसकी माँ आती है, ऐसे कैसे मेरे बेटे को मार दिया, अब देख तू, अब देख। तो अब उसकी माँ आती है बदला लेने के लिए, है ना, तो अब बेओवुल्फ को उसकी माँ से भी लड़ना पड़ता है ना, और उसकी माँ को भी वो फाइनली मार देता है, और उसे काफी चोट लगती है, बट फाइनली वो विक्टोरियस हो जाता है, वो जीत जाता है, राइट। तो पहला सीन हमें पता लग गया। हमारे पास अभी 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं। बेओवुल्फ है एक हमारा, जो कि एक बहुत ही शिवैल्रिक इंडिविजुअल है, और वो नेफ्यू है किसका, किंग हाइग्लैक का, जो कि गीट्स का राजा है, ठीक है। और वो अब जा रहा है किंग हॉथगर के किंगडम में, जो डेनमार्क में है, उसको और उसके किंगडम और किंगडम के लोगों को बचाने के लिए, किससे, एक मॉन्स्टर से, जिसने उसके किंगडम में तबाही मचा रखी है। उस मॉन्स्टर का नाम क्या है, उस मॉन्स्टर का नाम है ग्रेंडल, और वो क्या करता है, वो लोगों को खाता है, राइट, उसके वॉरियर्स को खा जाता है। इसकी वजह से उसकी जो सेना है वो कम हो रही है ना। तो अब हमारा बेओवुल्फ जाता है और उसको मारता है, फिर उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है, और वो उसके पीछे भागता है और उसको अंडरग्राउंड तक खींच ले जाती है, बट फाइनली हमारा बेओवुल्फ जो है वो उसकी माँ को भी मार देता है, और हीरोइकली बाहर निकल के आता है, और उसको उस रॉथगर किंग को और उसके किंगडम को ग्रेंडल से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो उसको मार देता है ना, आफ्टर अ डेस्परेट स्ट्रगल, राइट, और फाइनली वो वापस आ जाता है लेडन विद ऑनर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम द डैनिश किंग, है ना, और वो आ जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में क्या है, अब दूसरा पार्ट जो है वो हमें 50 इयर्स लेटर दिखाई देता है, वो हमें 50 साल आगे खींच ले जाता है, और यहाँ पे जो बेओवुल्फ है वो अब राजा बन चुका है गीट्स का, राइट, ठीक है। अब बेओवुल्फ राजा बन चुका है गीट्स का, राइट, और वहां पे अब किसकी प्रॉब्लम आती है, अब एक जो ड्रैगन है, राइट, ही इज गार्डिंग द होर्ड्स ऑफ ट्रेजर, राइट, और किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए अब उस ड्रैगन ने तबाही मचा रखी है, राइट, और वो सबको मारे जा रहा है, और पूरे लैंड में उसने तबाही मचा रखी है। तो अब बेओवुल्फ राजा है, अब तो उसे उठना ही होगा ना अपनी किंगडम को सेव करने के लिए, किंगडम के लोगों को सेव करने के लिए। तो फाइनली अपने कंट्रीमैन को सेव करने के लिए वो उस ड्रैगन से लड़ता है, और उसे सक्सीड भी होता है इन स्लेइंग द ड्रैगन, बट हिमसेल्फ गेट मॉर्टली वुंडेड, राइट, पर मर जाता है। बाय, बिकॉज वो पूरी लड़ाई में वो ड्रैगन को तो मार देता है, पर खुद भी इतना ज्यादा मॉर्टली वुंड हो जाता है कि ही फाइनली डाइज, राइट। एंड ये जो पोएम है ये एंड हो जाती है विद बेओवुल्फ फ्यूनरल, राइट, ये बेओवुल्फ के फ्यूनरल के साथ ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो हमारे पास इसमें 3 मेजर कैरेक्टर्स आते हैं, बेओवुल्फ, ग्रेंडल और ड्रैगन, ठीक है। और बेसिकली बेओवुल्फ के हीरोइज्म और उसकी शिवेलरी की कहानी है ये, ठीक है। There are also other stories that are referred in Beowulf, right? The fight of Finnsburg. अब कुछ stories भी हैं जो उसमें रेफर की गई हैं, जैसे stories of the fights of Finnsburg and other thread of Germanic stories run through, और बहुत सारी Germanic story बीच बीच में आती है, पर जो एक important story है जिसको Beowulf में रेफर किया गया है, that's called the fight of Finnsburg, right? Fight of Finnsburg को Beowulf में mention किया गया है, जो एक Germanic story है, ठीक है। अब बेओवुल्फ जो है वो क्या है, वो एक हीरोइक पोएम है, राइट, अबाउट अ ग्रेट वॉरियर, है ना, और उसके अरिस्टोक्रेटिक वर्च्यूज के बारे में, और बता रहा है कि उस टाइम की एज कितनी हीरोइक एज थी, ठीक है। और ऑफन हम इसको बहुत सारे टेक्स्ट के साथ हम इसको रिजेंबल करते हैं, हम इसको ऑडिसी के साथ कंपेयर करते हैं, हम इसको ओल्ड टेस्टामेंट के साथ भी कंपेयर करते हैं, हम इसको ओल्ड पेगन ट्रेडिशंस के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, और आज तक पीपल आर राइटिंग अबाउट दिस बुक, पीपल आर ट्रांसलेटिंग दिस बुक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राइट। इट शोज रिजेंबलेंस विद ओडिसी, pagan tradition of the Old Testament, right? The tone is not uniform. We have slow terror and suspense. We have very slow terror and suspense. Elegiac mood है इसमें, right? बहुत elegiac mood है, right? But फिर भी एक heroic point of view दिखाया हुआ है, ठीक है।
द पोएट वॉज ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्या ये जो पोएम है ये पहली बार ट्रांसक्राइब कब हुई थी? 1786 में। तुम देख रहे हो ये कब लिखी गई थी? When was it written? It was written in 8th century के आसपास ये लिखी गई थी और प्रोड्यूस हुई थी अराउंड 700 एंड 1040 के बीच में ये प्रोड्यूस हुई थी, पर ये पहली बार ट्रांसक्राइब 1786 में हुई है और पहली बार इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट 1805 में किया गया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट। पहली बार ये ट्रांसक्राइब 1786 में हुई है और पहली बार इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1805 में, राइट? और उसके बाद में इसकी कांस्टेंट ट्रांसलेशंस, आज तक इसके ट्रांसलेशंस आ रहे हैं, राइट, टिल द 19th सेंचुरी। तो अब हम इसके कुछ फेमस ट्रांसलेटर्स को जानेंगे, बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बियोवुल्फ को किस किसने ट्रांसलेट किया हुआ है ना? तो कुछ फेमस ट्रांसलेटर्स के नाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है? तो फेमस मॉडर्न ट्रांसलेटर्स जो इसके हैं, जैसे एडविन मॉर्गन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर है हमारा, जिसने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, राइट? जॉन मिचेल, किम्बल, विलियम मॉरिस, राइट, एडविन मॉर्गन, सीमस हेनली, माइकल जे अलेक्जेंडर, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने बियोवुल्फ को ट्रांसलेट किया है। कौन कौन है? जॉन मिचेल है हमारे पास, फिर विलियम मॉरिस है हमारे पास, फिर हमारे पास एडविन मॉर्गन है, सीमस हेनली है और माइकल जे अलेक्जेंडर है। इन सब के नाम आपको याद करने हैं। यू आर गोइंग टू रीड एंड रिवाइज एंड देन ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ तुम्हें याद हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा फोबिया मत पालना कि ये इतने सारे नाम, इतनी सारी एजेस कैसे याद होगी। ग्रेजुअली तुम बार बार एवरी डे यू रिवाइज, एवरी डे यू सी, एक बार समझ नहीं आ रहा है 2 बार देखो, and you learn all of it gradually. Everybody begins with nothing and then reach pinnacle पे पहुंच जाता है वो एक दिन। तो फोबिया मत पालो कि माय गॉड लिटरेचर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी। बस एक बार साथ साथ पढ़ लो, यू एक्चुअली डेवलप दैट लव फॉर लिटरेचर और फिर हम साथ में लिटरेचर के लव को स्प्रेड करेंगे, राइट? सो यू शुड नो दीज नेम्स। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन मॉडर्न ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने बियोवुल्फ को ट्रांसलेट किया है। जॉन मिचेल है, किम्बल है, विलियम मॉरिस है, एडविन मॉर्गन है, सीमस हेनली है, माइकल जी अलेक्जेंडर है ना? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है? तो अब और सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एसे जो कि है ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ, जो किसने लिखा है? J.R.R. टॉल्किन ने। इसका एक क्वेश्चन भी आ चुका है। एक ऐसे है जो J.R.R. टॉल्किन ने लिखा है जिसका नाम है ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल के तुमको याद हो गया होगा ये कि ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ एक ऐसे है जो J.R.R. टॉल्किन ने लिखा है, ठीक है? तो आई होप बियोवुल्फ क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दे चुके हैं बियोवुल्फ के। किसने उसको ट्रांसलेट किया, कब पहली बार ट्रांसक्राइब हुआ था, कब पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था, उसकी स्टोरी क्या है, मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं, कब पहली बार लिखा गया था, कब प्रोड्यूस किया गया था, उसका इंपॉर्टेंट एसे। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड बियोवुल्फ, राइट? तो अब अगले उस पर चलते हैं। द थर्ड टेक्स्ट, दैट्स डियोर, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज डियोर, राइट? इट्स अ पोएम ऑफ 42 लाइन्स। और डियोर क्या है? डियोर बेसिकली एक कंप्लेन पोएम है, ठीक है? ये कंप्लेन पोएम है और ये एक मिनिस्ट्रल जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि मैंने इतनी साल एक किंग के किंगडम में उसकी सेवा करी, उसे चीज़ें सुनाई और हमेशा वट एवर ही वॉन्टेड मी टू प्रेजेंट, मैंने वो प्रेजेंट किया। एंड अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जो कोई एक नया मिनिस्ट्रल, एक नया स्कॉप आ जाता है और वो मुझे उठा के फेंक देता है, राइट? ठीक है? और वो नया स्कॉप कौन है, उसका राइवल कौन है? हियोरेंडा, राइट? हियोरेंडा आ जाता है और इसी वजह से डियोर को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो डियोर में 2 इंपॉर्टेंट नाम है, डियोर और उसका राइवल हियोरेंडा, राइट? ठीक है? और ये 42 लाइन की पोएम है और ये कंप्लेन पोएम है, ठीक है? इज इट क्लियर? तो और अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि वो अपने आप को ही संतावना दे रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जर्मैनिक हिस्ट्री में बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए, बहुत सारी डाउनफॉल्स आए, पर फिर भी सब ठीक हो गया। तो जब वो सब ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगा, राइट? सो ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट दिस टू शैल पास, राइट? इट सेज दैट वाज सरमाउंटेड, सो मे दिस टू शैल पास, राइट?
कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके लाइफ में एक डार्क मोमेंट चल रहा है, मे बी you're not able to decipher कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम कहाँ जाओगे, मे बी यू आर अ बिट स्कैर्ड, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, यू जस्ट ट्राई एंड डू एंड मेक द बेस्ट ऑफ द डे, और धीरे धीरे देखना यू बेसिकली तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें जाना क्या है, कहाँ है, और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबके साथ आता है ना। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई इंसान बिल्कुल पिनाकल पे पहुंच जाता है, हर एक स्टेप 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 करके ही वो पिनाकल तक पहुंचता है, और हर स्टेप में तुमको ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, फिर तुम हिम्मत करते हो, फिर अगला स्टेप चढ़ते हो, फिर तुम्हें ऐसा कुछ हो जाता है कि तुम्हें लगता है यार। और देखो सुनो, लोगों की तो कभी मत सुनो, देखो लोगों का तो काम है यार कहना, वो आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ और कहेंगे, ऐसा नहीं है आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वो तुम्हारे उदाहरण दे रहे होंगे लोगों को और फिर किसी और की बुराई कर रहे होंगे, तो कम ऑन मैन, अब इतने बड़े तो हो गए हो कि लोगों का के बारे में सोच के तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना सोचो, खुद के सपने का सोचो, सोचो तुम्हें कहाँ जाना है जिंदगी में, अभी तो बस शुरू किया है, बहुत लंबा जाना है तुम्हें, यू मेड टू डू समथिंग रियली बिग, है ना। तुम तो भाई ट्रेल ब्लेजर्स बनने के लिए बने हो, तो इतनी छोटी छोटी डिफिकल्टीज से तो हार मारने वालों में से तो हो नहीं, तो लगे रहो भाई, जिंदगी इसी का नाम है। हर कोई, हमें जो लाइफ बहुत मेरी मेरी लगती है ना, वो इतनी मेरी होती नहीं है। सो कीप डूइंग योर बेस्ट, और देखना एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। चलो हाँ, बहुत ज्ञान पेलना हो गया, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, है ना। तो हमने बता दिया डियोर जो है वो 42 लाइन की पोएम है, और वो एक कंप्लेन पोएम है, और बेसिकली एक राइवल आ जाता है जिसका नाम ह्योरेंडा है, और इसमें जो फेमस लाइन है वो ये है, दिस टू शैल पास, ठीक है। और ये भी एग्जीटर बुक में लिखी गई है। अब मुझे ये बताओ कि इससे पहले कौन सा टेक्स्ट था जो एग्जीटर बुक में लिखा गया था, ठीक है, कमेंट करना नीचे कि इससे पहले कौन सा टेक्स्ट था जो एग्जीटर बुक में लिखा गया था। अगर नहीं याद आ रहा है, पीछे वाले लेक्चर में जाओ और ढूंढो, जब कोई डाउट आती है उसको उसी वक्त सॉल्व करो, तो वो माइंड से कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। उसके बाद में, द पोएम इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय उबी सुंट, राइट, वेयर आर दे, ओके। ये जो पोएम है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ टर्म दैट्स कॉल्ड उबी सुंट, ठीक है, विच मीन्स वेयर आर दे, ओके। एंड इसके बाद में दो और पोएम्स हैं जो इसी लाइन पे चलती हैं, जो एक है वॉन्डरर और एक है सी फेरर, ठीक है। ये दो टेक्स्ट हैं, वॉन्डरर और सी फेरर, जो इसी लाइन पे चलते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे नोट्स में, आई हैव written about these texts in detail, बट ये हम मेजरली आगे कुछ और भी बुक्स हैं इसके जैसी, उन सबको मिला के साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम तीसरे टेक्स्ट पे चलते हैं जो है वर्ल्ड हेयर। क्या है इसका नाम? वर्ल्ड हेयर, ठीक है। तो वर्ल्ड हेयर कॉन्वेंशनल टाइटल गिवन, और ये जो वर्ल्ड हेयर है ये एक कॉन्वेंशनल टाइटल है जो दो एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोइट्री को दिया गया था, है ना। और ये पोइट्री जो है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर आउट हुई थी, ऐसा नहीं है कि ये थी, बस एक्सीडेंटली इसका एक फ्रैगमेंट हो गया। तो बेसिकली इसका ना तो कोई बिगनिंग है ना तो कोई एंड है ना, ये एक फ्रैगमेंटेड पोएम है बस। तो तुम्हें बस इसका नाम याद रखना है, वर्ल्ड हेयर एक पोइट्री है। अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड हेयर किस एज की है या फिर क्या थीम है, तो तुम्हें एकदम से याद होना चाहिए कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री है, तो उसी के ही कोई थीम रिजॉल्व आउट हो रही होगी आसपास से, है ना। और ये एक फ्रैगमेंट के फॉर्म में आई थी, और ये इनकम्प्लीट है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 30 लाइन्स की है ये दोनों पोएम, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हम लोगों ने पहले हमने पढ़ा था कि क्रिश्चियनाइजेशन शुरू हो गया था, तो चलो अब बताओ कि ऑगस्टाइन किस एज में आया था यहाँ पर, व्हाट वाज द डेट जहाँ पे ऑगस्टाइन आया था और कहाँ पर आया था, और उसने पहले किस राजा को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद वो एज बताओ जहाँ पर हमारी लैंडमार्क मीटिंग हुई थी, साइनॉइड ऑफ विटबाई, कब हुई थी वो, ठीक है। बताओ, नहीं याद आ रहा है, पीछे जाओ, ढूंढो, लिखो, बिकॉज जब खुद सर्च करोगे तभी चीजें याद रहेंगी, ओके। तो अब हम बोल रहे हैं कि नाउ विद द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ एंग्लो सैक्सन हैज फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन लिटरेचर, राइट। अब लिटरेचर पे भी वो क्रिश्चियनाइजेशन इफेक्ट जो है वो आ रहा है धीरे धीरे, है ना।
with addition of Christian elements to heroic poetry, and in turn had its contact with classic civilization of Greece and Rome, right? तो अब क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है एंग्लो सैक्सन एज पे, है ना? तो कहीं ना कहीं ग्रीस और रोमन का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है एंग्लो सैक्सन एज पे, ठीक है? ग्रीस और रोमन का इन्फ्लुएंस भी हमें, क्लासिकल लिटरेचर का इन्फ्लुएंस भी, क्लासिकल सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलेगा अब एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के अंदर, राइट? तो अब रिलीजियस पोएट्री आने लगेगी, राइट? रिलीजियस पोएट्री इन द एंग्लो सैक्सन फ्लरिश्ड इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड, दैट्स नॉर्थम्ब्रिया, राइट? नॉर्थम्ब्रिया में अब ग्रेजुअली ये फ्लरिश आउट होगी थ्रू आउट द 8th सेंचुरी, है ना? क्यों? क्योंकि अभी क्रिश्चियनाइजेशन मिशन इस टाइम पे शुरू हो गया था, ठीक है? और ये ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी तक ये पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म ले लेती है अपना, ठीक है? तो अब बेडे, हम लोगों ने बेडे की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक पहले पढ़ी थी जब हम लोगों ने कहा था कि इसने हमें बताया है कि एंग्लो सैक्सन्स ये 3 ट्राइब हैं और ये यहाँ से आई है। तो वो कौन सी बुक थी? जस्ट ट्राई टू रिकॉल। वो बुक थी एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, है ना, ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है? तो बेडे द ग्रेट इंग्लिश हिस्टोरियन स्कॉलर लिव फ्रॉम, ये 673 से 735 के बीच में ये इसके एज हैं जिसमें ही वॉज इन अ प्रॉपर वर्किंग फॉर्म, राइट? In his ecclesiastical history of English people tells how in monastery of Abbess Hilda at Whitby the lowly lay brothers named Cademon, right? तो अब ये कैडमोन की कहानी भी सुनाता है। अब इसने हमें बताया एंग्लो सैक्सन के बारे में और अब ये हमें अपनी इस ही बुक में कैडमोन की कहानी भी सुनाता है। अब कैडमोन कौन है? कैडमोन मेजरली एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है एबाइस हिल्डा, उसमें रहता था वो और वो काम करता था, राइट? वो एक ले ब्रदर था और वो वहाँ काम करता था और एकदम से एक बार वो रात को सोकर उठता है और एकदम से उसमें वो सिंगिंग पावर आ जाती है और वो ही गेट्स दैट गिफ्ट ऑफ सॉन्ग और वो बोलता है कि सपने में मेरे भगवान आए थे और उसने मुझे बोला है कि यू प्रीच आउट टू द वर्ल्ड, ठीक है? तो वो फिर प्रीचिंग शुरू कर देता है और यहाँ से हमारी रिलीजियस पोइट्री की शुरुआत होती है, राइट? विद कैडमोन। और ये कैडमोन के बारे में किसने बताया है? बेडे ने बताया है। किसमें? एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में, ठीक है? ठीक है, और ये कौन था? हमारा ले ब्रदर था, ठीक है? So Cadmon suddenly and miraculously receives the gift of song and at once began to sing in the praise of God, the Creator. This is said to be the beginning of Anglo-Saxon religious poetry, right? Cadmon went on to sing for mankind and the whole story of Genesis. फिर इसने काफी कुछ ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में भी लिखा है और फिर मैनकाइंड के बारे में लिखा है और बताया है कि भगवान पूरे संसार को क्या नॉलेज प्रीच आउट करना चाहते हैं और बहुत कुछ। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से एंग्लो सैक्सन रिलीजियस पोएट्री की शुरुआत हो जाती है, ठीक है? बेडे रोट हिज एक्लेस्टिकल हिस्ट्री इन लेटन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि बेडे रोट हिज एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इन इंग्लिश, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो लगा के आएगा इंग्लिश या लगा के आएगा ओल्ड इंग्लिश या लगा के आएगा एंग्लो सैक्सन, पर ये लेटन भाषा में लिखी गई थी। यू हैव टू रिमेंबर that ecclesiastical history of English people was originally written in the Latin language, ठीक है? Though it was translated into Anglo-Saxon by King Alfred, और किसने इसको Anglo-Saxon में चेंज किया था? King Alfred ने। और King Alfred ने बहुत सारे टेक्स्ट को वर्नैक्युलर लैंग्वेज में चेंज किया है। King Alfred जो है वो जाने ही उसके ट्रांसलेशंस के लिए जाने जाते हैं। He had focused a lot on the vernacular language, ठीक है? वन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ, और ऐसा माना जाता है कि इसकी एक ओरिजिनल नॉर्थम्ब्रियन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर गई, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? अदर और भी बहुत सारी रिलीजियस पोएम्स हैं जो पहले माना जाता था कैडमोन ने लिखी है, पर बाद में उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने के बारे में पता लगा कि ये कैडमोन ने नहीं लिखे, बेसिकली बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ कैडमोन, राइट? और वो पोएम कौन सी थी? वो थी जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल, राइट? और ये सब जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्ट थी। हम ऑलरेडी 3 मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, हम एक्सीटर पढ़ चुके हैं, हम नोबल कॉर्टेक्स पढ़ चुके हैं और ये हमारी तीसरी मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसका नाम है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट? क्या नाम है? जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है? और जो कैडमोन स्कूल है उसकी 3 पोइट्री है, जेनेसिस, एक्सोडस और डेनियल, और ये सब किसका पार्ट है? जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट बेस्ड ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट इज जेनेसिस। जेनेसिस जो है वो पहली और लॉन्गेस्ट पोइट्री है ओल्ड टेस्टामेंट पे बेस पे और वो 3000 लाइन में लिखी गई है और ये हमें शैतान के रेबेलियन के बारे में, गॉड के एंगर के बारे में, शैतान को जो बाहर फेंक दिया गया था
और जब शैतान ने सोचा था कि अब तो मैं अपना खुद का राजा हूँ और अपना एक ग्लोरियस किंगडम बनाऊंगा, उस सब के बारे में जेनेसिस में लिखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस पोइट्री में ये सबसे बड़ी पोइट्री है जो अराउंड 3000 लाइन्स में लिखी गई थी, राइट। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट इम्परफेक्ट थी, गैप्स थे, क्योंकि हमें ये बस मिली थी ऐसे, राइट। ये एक बहुत पुराना लिटरेचर है और कभी भी जो भी लिटरेचर बहुत पुराना हो जाता है वो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पेज फट जाता है या वो गायब हो जाता है, तो हमें वो प्रॉपर नहीं मिलता। और उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, है ना, तो इसीलिए ये एक इम्परफेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। और ऑफन इसको ऐसा माना जाता है कि एक रूडिमेंट्री पैराडाइज लॉस्ट है, राइट। और इसमें एक जो स्पीच को ऑफन कंपेयर किया जाता है वो है शैतान की स्पीच, जो ये कहते हैं व्हाई शुड आई टॉयल, आई नीड हैव नो मास्टर, राइट। और उसके बाद में जेनेसिस जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेनेसिस ए और जेनेसिस बी, ठीक है। ये जो है ये पहले लिखी गई थी, ये बाद में आई, क्लियर, ठीक है। तो अब हम इन बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जेनेसिस के बारे में हमने बात कर लिया है, ये सबसे बड़ी रिलीजियस पोएट्री थी, 3000 लाइनों के आसपास लिखी गई थी। किस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई थी? जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई थी, है ना, और दो पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, ठीक है। और ये मेजरली शैतान के रेबेलियन, गॉड के एंगर, शैतान को बाहर फेंक दिया जाता है, उन सब के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। अब अगली जो आती है वो एक्सोडस। एक्सोडस जो है वो बेसिकली इस पोएम में ये बताया गया है कि मोसेस एमर्ज आउट एज ग्लोरियस हीरोज। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम्स नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये सारी रिलीजियस पोएट्री थी, ठीक है। तो एक एक दो दो लाइन के बारे में याद रखोगे, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद में है डेनियल। ये जो है ये पोइट्री के फॉर्म में ना लिख के थोड़ा प्रोज के फॉर्म में ज्यादा लिखी गई थी, राइट। इट वाज मोर प्रोजाइक इन नेचर, राइट। और यहाँ पे ना डेनियल में हमें दिखाया गया है कि शैतान कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया था, राइट, और वो लमेंट कर रहा था। देखो यहाँ पे हमें शैतान को एक लमेंटिंग दिखाया हुआ है, राइट, और लॉस्ट सोल लमेंटिंग बिटरली बिकॉज उसे जॉयज ऑफ हेवन से बेदखल कर दिया गया है, राइट। सो डेनियल में क्या है, डेनियल में शैतान का कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखाया गया है कि वो लमेंट कर रहा है कि उसे जो जॉयज ऑफ हेवन से बाहर निकाल दिया गया है, जो कि जेनेसिस में कंप्लीटली अलग है। जेनेसिस जो है वो कहीं ना कहीं पैराडाइज लॉस्ट का रेप्लिका है ना, पर डेनियल में हमें एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेटन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, ये सब खत्म हो गया। अब एक अलग ऑथर आता है जो है साइन वुल्फ, ठीक है। तो साइन वुल्फ आता है और ये एक एंग्लो सैक्सन पोएट है जो 9th सेंचुरी में फ्लरिश होता है, और ये एक पहला एंग्लो सैक्सन पोएट है जिसने अपने कामों को साइन किया था, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि पहला एंग्लो सैक्सन ऑथर कौन सा है जिसने अपने काम को साइन किया था, राइट। द फर्स्ट एंग्लो सैक्सन ऑथर टू साइन हिज वर्क इज साइन वुल्फ, राइट। याद भी रख सकते हो, साइन वुल्फ, है ना। और कहते हैं कि इसकी जो क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस थी और वो ये बहुत ही मेडिटेटिव टोन में लिखता था। नॉट इम्पॉर्टेंट, बस याद ये लिखना है कि साइन वुल्फ एक पहला एंग्लो सैक्सन ऑथर था जिसने अपने कामों को साइन किया था, राइट। तो अब इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या हैं, राइट। तो अब साइन वुल्फ के 4 मेजर इंपॉर्टेंट काम है जिसके नाम आपको याद रखने हैं, राइट। और ये सब एग्जीटर बुक में लिखे गए हैं। अब एग्जीटर बुक के हमारे पास कितने काम आ चुके हैं। सबसे पहला जो हमने एग्जीटर बुक में पढ़ा था वो थी हमारी पहली एंग्लो सैक्सन पोइट्री, है ना। कौन सी थी वो याद करो। जो दूसरा हमने एग्जीटर बुक का पढ़ा था, दूसरा जो एग्जीटर बुक में लिखा गया था वो क्या था, और अब ये तीसरा है। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 टेक्स्ट आ चुके हैं जो एग्जीटर बुक में लिखे गए थे। और इसके साथ ये भी याद करो कि बेओवुल्फ जो था वो किस में लिखा गया था और रिलीजियस पोएट्री जो थी वो किस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई थी। ये सब याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये भी अब एग्जीटर बुक में लिखा जा रहा है, ठीक है। पहली कौन सी थी? विडसिथ थी, याद करो। प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स। अगर ये फैक्ट भूल रहे हो तो वापस जाओ, रिकलेक्ट द फैक्ट्स एंड देन कम बैक, क्योंकि अगर अभी छोड़ दोगे ना तो ये छूट जाएगा। यू विल नेवर रिमेंबर दीज फैक्ट्स। फैक्ट्स जैसे ही लगे ना भूल रहे हो वैसे ही उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि साइन वुल्फ एक पहला ऐसा एंग्लो सैक्सन ऑथर था जिसने अपने काम को साइन किया था, है ना। तो उसने 4 पोइट्री लिखी गई है। पहली है क्राइस्ट, फिर है जूलियाना, फिर है एलेने और फिर है फेट्स ऑफ एपोस्टल, राइट। तो ये 4 नाम याद रखने आपको, बाकी बस थोड़ा थोड़ा। जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट जो है वो एडवेंट, एक्सेशन और लास्ट जजमेंट के बारे में बात करता है। जूलियाना जो है वो एक जूलियाना नाम की एक सेंट थी, उस सेंट की लाइफ के बारे में बात करते हैं। एलिना जो है
वो बात करते हैं आफ्टर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द ट्रू क्रॉस बाय सेंट हेलेना, राइट। एलेने जो है इट टॉक्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द ट्रू क्रॉस, राइट, बाय सेंट हेलेना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एलेने जो है वो टॉक करता है किसके बारे में, कि कैसे ट्रू क्रॉस जो है वो डिस्कवर किया गया था, है ना। और किसने डिस्कवर किया था, सेंट हेलेना ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और फोर्थ जो है वो है फेट्स ऑफ एपोस्टल। तो तुम्हें याद रखना है कि चारों पोएम किसने लिखी है, क्राइस्ट, जुलियाना, एलेने और फेट्स ऑफ एपोस्टल साइन वुल्फ ने लिखी है, और ये पहला ऑथर था जिसने अपने कामों को साइन किया था, ठीक है। और ये जो फेट्स ऑफ एपोस्टल है इट बिगिंस विद द लाइन लो वियरी ऑफ वॉन्डरिंग सैड इन स्पिरिट I made this song, gathered it from far and wide. How bright and glorious heroes showed forth their courage, right? Low, weary of wandering, sad in spirit. I made this song, gathered it from far and wide. How bright and glorious heroes showed forth their courage. इस लाइन से ये शुरू होता है फेट्स ऑफ एपोस्टल। बस एक बार पढ़ लेना तो तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर ये लाइन देख ली और आ गया टेक्स्ट में तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि अरे ये तो वहां पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप ये याद हो गया। क्या तुमसे पूछा जाएगा कि चार कौन सी पोएम है जो साइन वुल्फ ने लिखी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी पोएम है। जुलियाना है, एलेने है। जुलियाना एक सेंट के बारे में है। एलेने जो है उसमें वो ट्रू क्रॉस को फाइंड करता है। कौन फाइंड करता है, सेंट हेलेना फाइंड करती है ना। क्राइस्ट है। फेट्स ऑफ एपोस्टल है। फेट्स ऑफ एपोस्टल 123 लाइंस है और वो कुछ ऐसे बहुत ही सैड मेलंकोलिक टोन में शुरू होती है। Low, weary of wandering, sad in spirit, I made this song, right? बहुत ही sad, melancholic tone में शुरू होती है, ठीक है। ओके, और ये एक बेसिकली फेट्स ऑफ एपोस्टल क्या है, ये एक मार्टोलॉजी है 12 एपोस्टल्स की, राइट। कितने की, 12 एपोस्टल्स की। ये एक मार्टायर सॉन्ग है जो एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखा गया है, राइट। और ये किसका पार्ट था, ये वर्सिली बुक का पार्ट था, ओके। ये जो दो हैं, क्राइस्ट और जुलियाना, ये है एक्सीटर बुक का पार्ट, बट जो फेट्स ऑफ एपोस्टल है वो है वर्सिली बुक का पार्ट। यू हैव टू रिमेंबर दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आई कैन नॉट एम्फसाइज इट मोर। अब तक हमारे पास 4 आ चुकी हैं। अब ये लिखना कि इसमें कौन कौन सी बुक लिखी गई थी। ये पहली आई है हमारी वर्सिली जिसमें फेट्स ऑफ एपोस्टल लिखा गया है, पर हमारे पास ऑलरेडी एक्सीटर आ चुकी है जिसमें अराउंड 4 या 5 काम हो चुके हैं। नोवेल कोडेक्स आ चुकी है और हमारे पास ये जुलियाना आ चुकी है और हमारे पास वर्सिली आ चुकी है, ठीक है। तो यू शुड नो कि कौन कौन सी बुक में। वर्सिली की अभी तक सिर्फ एक ही है, दैट्स द फेट्स ऑफ एपोस्टल, ठीक है। और ये मार्टायर सॉन्ग है 12 एपोस्टल्स के बारे में और ये एक एलिट्रेटिव वर्स में लिखा गया है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब एक और जो इम्पोर्टेंट वर्क है दैट्स कॉल्ड द ड्रीम ऑफ रूड। और एक किसी एग्जाम में रूड का मतलब पूछा गया था, तो यू हैव टू रिमेंबर रूड का मतलब होता है क्रॉस, है ना। क्रॉस जो हमारा क्रॉस है वो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। और ये जो इसकी जो एक फ्रैगमेंट है वो इंस्क्राइब्ड है कहाँ पे, इन द रूथवेल क्रॉस इन डर्बरशायर, राइट, स्कॉटलैंड में, राइट। तो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ये भी आया था क्वेश्चन, कहाँ पे, रूथवेल क्रॉस में ये इंस्क्राइब्ड है। ड्रीम ऑफ रूड का एक फ्रैगमेंट जो है वो रूथवेल क्रॉस पे इंस्क्राइब्ड है, राइट। और कहाँ पर है, ये स्कॉटलैंड में है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। और ये भी किसमें है, वर्सिली बुक। तो अब वर्सिली बुक के 2 हो चुके हैं, एक ड्रीम ऑफ रूड और एक फेट्स ऑफ एपोस्टल, ठीक है। और ये हमारी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम है जो ड्रीम और विजन के बारे में है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये भी याद रखना है सबकी पहली एंग्लो सैक्सन पोइट्री कौन सी है, पहली एंग्लो सैक्सन रिलीजियस पोइट्री कौन सी है, पहली एंग्लो सैक्सन ड्रीम वर्जन पोइट्री कौन सी है, राइट। ये सब याद होना चाहिए। See, with literature at the initial stage, you'll have to work hard, right? Because to